کہ چینی کا مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت کر لیا گیا ہے۔ چینی مہنگی اور افغانستان سمگل کرنے کی تحقیق کر دی گئی ہیں۔ چینی کن راستوں سے بارڈر کراس ہوئی، کین کمشنر نے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اب تک پنجاب سے 4 لاکھ ٹن چینی افغانستان سمگل کی جا چکی ہے۔ 130 روپے والی چینی افغانستان میں 200 روپے فی کلو فروخت ہوئی ہے، جبکہ چینی کی فی کلو قیمت بڑھنے سے ملز مالکان کو 115 ارب روپے کا فائدہ ہوا ہے، جبکہ سیکرٹری فوڈ پنجاب محمد زمان وٹو کہتے ہیں کہ اب تک 40,000 سے زائد چینی کی بوریاں ذخیرہ اندوزوں سے برآمد کی جا چکی ہیں۔ چینی کی سمگلنگ روکنے کے لیے مؤثر نظام وضع کر رہے ہیں۔ سستی چینی کا مصنوعی بحران پیدا کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت، چینی مہنگی اور افغانستان سمگل کرنے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ چینی کن راستوں سے سرحد پار گئی، کین کمشنر نے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اب تک پنجاب سے 4 لاکھ ٹن چینی افغانستان سمگل کی جا چکی ہے۔ 130 روپے والی چینی افغانستان میں 200 روپے فی کلو فروخت ہوئی۔ چینی کی فی کلو قیمت بڑھنے سے ملز مالکان کو 115 ارب روپے کا فائدہ ہوا۔ اس سے قبل لاکھوں ٹن چاول اور آٹا بھی افغانستان سمگل کیا گیا ہے۔ سمگلنگ بڑھنے سے ملک میں چینی کی قیمت بڑھی، کین کمشنر نے تمام شوگر مل سے بھی ڈیٹا منگوا لیا ہے۔ سیکرٹری خوراک پنجاب محمد زمان وٹو کہتے ہیں کہ اب تک 40,000 بوری سے زائد چینی ذخیرہ اندوزوں سے برآمد کی جا چکی ہے۔ چینی کی سمگلنگ روکنے کے لیے مؤثر نظام وضع کر رہے ہیں۔ چینی کی نقل و حمل کے لیے متعلقہ ضلعی انتظامیہ کا پرمٹ لازم ہوگا۔ سفید پوش طبقے کے لیے بنے یوٹیلیٹی اسٹور بھی ریلیف سے محروم ہو چکے ہیں۔ یوٹیلیٹی اسٹور پر سستا آٹا غائب، دیگر ضروری اشیاء بھی محدود ہو گئی ہیں۔ رمضان المبارک سے قبل 89 روپے میں ملنے والی چینی اب 91 روپے فی کلو میں بکنے لگی ہے، جبکہ سستی خریداری کے لیے آئے شہری مایوس واپس لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی اسٹور پر آٹا غائب ہو گیا ہے، جبکہ دیگر ضروری اشیاء بھی محدود ہو گئی ہیں۔ حکومتی سبسڈی بھی مہنگائی کی نذر ہو گئی۔ عوامی ریلیف کے لیے بنے یوٹیلیٹی سٹورز بھی ریلیف نہ مہیا کر سکے۔ سستے سٹورز پر ضروری اشیاء خورنوش کی تعداد محدود رہ گئی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر دستیاب اشیاء کے نرخوں اور عام مارکیٹ میں خاص فرق نہ رہا۔ رمضان المبارک سے قبل 89 روپے ملنے والی چینی اب 91 روپے فی کلو دستیاب ہے۔ 578 روپے ملنے والے کوکنگ آئل کی اب قیمت 626 روپے ہو گئی۔ گھی 401 سے 406 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگا۔ شہری کہتے ہیں حکومت کوئی وعدہ وفا نہیں کر سکی، نہ ہی مہنگائی کم ہوئی، نہ ہی سستے رمضان بازار لگے۔ جس طرح پہلے رمضان بازار لگتے تھے پورے پنجاب میں چھوڑ کے پورے پاکستان میں، اس دفعہ گورنمنٹ نے عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ حکومت کے جو دعوے ہیں وہ تو جب آئے تھے تو انہوں نے وعدہ تو یہی کیا تھا کہ ہم یوں بڑا اچھا کر دیں گے، لیکن حقیقت میں اب رمضان ہے، ابھی تک جو انہوں نے جو لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ ابھی تک پریکٹیکلی عملی طور پہ گراؤنڈ روڈ پہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ شہری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کے نرخوں پر نظر ثانی کی جائے تاکہ عوام کو سستی اشیاء دستیاب ہوں۔ ماہ مقدس میں بھی مہنگائی کا طوفان نہیں تھم سکا ہے۔ مرغی کا گوشت 15 روپے مہنگا ہو چکا ہے، قیمت 534 روپے کلو ہو گئی ہے۔ انڈوں کی قیمت 2 روپے بڑھ گئی ہے، فی درجن انڈوں کی قیمت 261 روپے ہو گئی ہے۔ پھلوں کی قیمت بھی آسمان کو چھونے لگی ہے، کیلا درجہ اول 450 جبکہ درجہ دوم 300 روپے درجن تک بکنے لگا ہے۔ سیب بھی 400 روپے سے نیچے نہیں آ سکا ہے، جبکہ سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ مہنگائی ٹرین نہ رکی، برائلر گوشت 15 روپے فی کلو مہنگا، 2 روز میں برائلر گوشت 30 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا۔ برائلر گوشت نرخ 534 روپے فی کلو مقرر۔ فارمی انڈے 2 روپے فی درجن مزید مہنگے، فارمی انڈوں کا نرخ 261 روپے فی درجن ہو گیا۔ پیاز اور ٹماٹر 100 روپے فی کلو فروخت ہوئے، آلو 70 روپے فی کلو رہا، لہسن 450 اور ادرک 700 روپے فی کلو رہے، بند گوبھی 50، پھول گوبھی 100، مٹر 200 روپے فی کلو فروخت ہوا، لیمو دیسی 500 اور لیمو چائنا 200 روپے فی کلو فروخت ہوئے۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے عوام کو ذہنی مریض بنا دیا۔ ابھی میں برائلر لینے آیا ہوں، اس سے وہ جاتے پیچھے میں نے ریٹ دیکھا 410 روپے، ادھر دے رہے ہیں صاف ہی ریٹ 580 روپے ریٹ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ریٹ لسٹ یہ دیکھ لیں، ہم تو ریٹ لسٹ سے نیچے ہی دے رہے ہیں۔ وہ بہرحال سبزیاں بھی ایسے ہی ہیں، جو چیز ہم لینے جاتے ہیں وہ ڈبل ہو چکی ہیں ہر چیز۔ چکن کا ریٹ 534 روپے ہو گیا ہوا ہے، جو ہماری پہنچ سے باہر ہے، اور سبزیوں کا اور پھل کا آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے بھی ریٹ اوپر جا رہے ہیں۔ برائلر اور سبزیوں کے ساتھ ساتھ پھلوں کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئیں۔ سیب 200 سے 400 جبکہ کیلے 300 روپے فی درجن تک دستیاب ہیں۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ایل پی جی مافیا کی منمانیاں جاری ہیں۔ عوامی رکشہ یونین اور گھریلو صارفین کا پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ چیئرمین عوامی رکشہ یونین کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹے میں ضلع انتظامیہ نے قیمتیں کنٹرول نہ کی تو ڈی سی آفس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
अवामी रिक्शा यूनियन बढ़ती हुई महंगाई और एलपीजी माफिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। अवामी रिक्शा यूनियन और घरेलू सार्फिन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर खूब नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि ईद सर पर है, लेकिन महंगाई की वजह से रिक्शे खड़े ही रहते हैं और काम है नहीं। मुनाफाखोर माफिया ने एलपीजी की कीमत 300 रुपए फी किलो तक कर दी है। अवामी रिक्शा यूनियन के जो कारकुनान है, रिक्शा ड्राइवर हैं, आज इसराफ एहतजाज इसलिए हुए बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ। एलपीजी जो है सरकारी रेट ओगरा का जो है ये 210 रुपये है, अब ब्लैक मार्केटिंग में 280, 290, 300 रुपये तक बेची जा रही है। दिन दिहाड़ आ रहा, महंगाई इतनी है, हमें समझ नहीं आ रहा बच्चों को ईद के कपड़े कैसे लेके देंगे। गैस इतनी महंगी है, गैस डलवा लेते हैं, सवारी किराया खर्च इतनी नहीं है, काम निकल आए रिक्शे का, हमारा रिक्शा उधर ही खड़ा हो जाता है। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद खौरी ने कहा कि माफिया ने खुद साख्ता महंगाई करके लूट मार मचा रखी है। 210 रुपये वाली एलपीजी आज 300 रुपये में बिक रही है, आटा नाकस 180 रुपये में बिक रहा है, ट्रकों में दे रहे हैं फ्री आटा, यह जलालत है। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन का मज़ीद कहना था कि 24 घंटों में ज़रा इंतजामिया ने कीमतें कंट्रोल ना की तो डीसी ऑफिस के सामने धरना देंगे। रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुरनोश के नरखों में इस्तेहकाम बड़ा मसला बन गया है। सरकारी नरखों के बरअक्स इंतहाई ज़ायद नरखों पर फ़रोख्त ने भलों को शजर ममनुआ बना दिया है। सूरत हाल में बेहतरी के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। रमज़ान के दौरान दालें, सब्जियां, फल गर्ज कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी सरकारी निरखों पर दस्तयाबी मुमकिन बनाई जा सकी हो। फल तो जैसे आम सारफ के लिए शजरे ममनुआ बन चुके हैं। सेब काला कोल्लू सरकारी कीमत 320 रुपए की बजाय 450 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। केला दर्जा अव्वल 215 की बजाय 400 रुपए फी दर्जन तक मिल रहा है। खजूर ईरानी की सरकारी कीमत 450 है, लेकिन ये 560 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। यही सूरत हाल दीगर फलों की बाबत भी दिखाई देती है। महंगाई का एक तूफान है, गरीब आदमी पीस के रह चुका, सफेद पोश तबका, जिसे इस वक्त समझ नहीं आ रही कि मैं क्या किसके पास जाऊं। हर आदमी का अपना रेट है, कोई चेक इन बैलेंस नहीं है कि कौन सी चीज़ कितने में बिक रही है, कहाँ से आ रही है। मुख्तलिफ रेट है, तो सरकारी रेट पे तो कोई चीज़ें मिलती, कुछ चीज़ें हैं जो मिल जाती हैं, बाकी ज़्यादातर चीज़ें तो नहीं मिल रही। ऐसी ही सूरत हाल सब्जियों के हवाले से भी देखने में आ रही हैं। प्याज 90 रुपए की बजाय 120 रुपए किलो, लहसुन चाइना 350 की बजाय 470, तो टमाटर सरकारी कीमत 100 रुपए की बजाय 130 रुपए फी किलो तक मिल रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली 24 और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ऐड किए हैं अपने सिस्टम में। लाहौर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ज़िला है और ऑब्वियसली उसकी क्रिटिकल मार्केट्स है, जिस तरह हमारी 25 से ज़ायद क्रिटिकल मार्केट्स हैं इन प्लेस, तो उसको सर्वेलेंस के लिए, उसके ऑब्जर्वेशन के लिए और वहाँ वर्किंग के लिए हमें मज़ीद लोग भी दरकार थे। साथ ही साथ हमारी जो मार्केट कमेटीज़ हैं वो एक्टिवली वर्किंग कर रहे हैं। सुबह उस ऑक्शन को हम लोग खुद ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। हकीकत ये भी है कि अब मुनाफाखोरी का रुझान इतना बढ़ चुका है कि इस पर काबू पाना बज़ाहिर आसान नहीं रहा। न जाने हमने भी कौन सा तर्ज अमल इख्तियार कर लिया है कि जो हमेशा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने पर उकसाता रहता है, और नतीजतन हमें कानून का कोई पास रहा, ना ही इखलाकियात से कोई रिश्ता बाकी बचा। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। PIA की परवाज़ PK747 ताहाल ताख़ीर का शिकार है। मदीना जाने वाली परवाज़ में आने वाली तकनीकी खराबी को ताहाल दूर नहीं किया जा सका है। तैयारे की खराबी दूर करने के लिए पुर्जे कराची से लाहौर मंगवाए गए हैं, जबकि 300 से ज़ायद मुसाफिर रात से लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, बताएगा इंतज़ामिया की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है, कब तक इस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर कर लिया जाएगा? जी अभी तर्जमान की जानिब से बताया गया कि पुर्जे उनसे जहाज से कराची से मंगवाए गए। 24 घंटे हो गए लाहौर एयरपोर्ट पे मुसाफिर मौजूद हैं। कुछ के बारे में कहा जा रहा है कि उनको रात को होटल दे दिया गया था, लेकिन अभी भी जो उनसे मुसाफिर वो हॉल के अंदर, ब्रीफिंग हॉल के अंदर मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कब तक जहाज ठीक हो और वो मदीना के लिए रवाना हो। 24 घंटे का फेयर उनका होटल का जो उन्होंने मदीना में अदा किया था वो भी उनका ज़ाया हो गया, और लाहौर से मदीना क्योंकि वहाँ पे जो उनसे वो आखिरी अशरा रमज़ान का शुरू होने वाला है और लोगों ने इत्तेकाफ़ पे बैठना, तो उस हवाले से भी लोग बड़े परेशान हैं। जिन लोगों के नाम उस फहरिस्त में शामिल थे उन्होंने मदीना पहुँचना है, उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अपनी एंट्री करवानी थी। इस सारी सूरत हाल के अंदर ताहाल PIA के पास कोई ऐसा तैयारा मौजूद नहीं है जो 300 लोगों को लेके लाहौर से मदीना रवाना हो। ये परवाज गुज़श्ता रात 9:15 बजे रवाना होनी थी। मुसाफिर कल 4 बजे से कबल एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, रोजे की हालत में थे। अफ्तारी इन्होंने एयरपोर्ट पे की, आज सहरी इन्होंने एयरपोर्ट पे की।
अब दोबारा फिर अफ्तारी का टाइम होने वाला है, लेकिन परवाज़ की रवानगी का वक्त अभी तक नहीं बताया जा रहा। मुसाफिर को ये मुतालबा है कि फौरी तौर पे जो वजीर हवाबाजी उनको चाहिए कि इख्तियारात उनसे है वो या किसी और एयरलाइन से लें और वो उनको मुहैया किया जाए लाहौर से मदीना ताकि लोग पहुंच सकें। उसकी वजह यह है कि लाखों रुपए की टिकट ली इन्होंने PIA की, उसके बाद इन्होंने लाखों रुपए अदा किया उम्रे की अदायगी के लिए, और जो होटल बुकिंग है वो सबसे महंगी इस साल पड़ रही है, तकरीबन 400 जो उनसे है वो सऊदी रियाल जो उनसे वो रोजाना की बुनियाद पे। अब 24 घंटे इनके कट चुके हैं इनके पैकेज में से, वो नुकसान भी मुसाफिर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी ठीक है, मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में अहम इजलास शुरू हो चुका है। पंजाब भर के ज़िले सदूर और जनरल सेक्रेटरीज इजलास में मौजूद हैं। अदलिया की आज़ादी के लिए जदोजहद, डोर टू डोर तंजीमी मुहिम और इंतखाबी अमूर ज़ेर गौर आएंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे लियाकत अली। जी बताइए। आज बिल्कुल इस वक्त ज़मान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत सुबह भर के PTI के ज़िले सदूर और जनरल सेक्रेटरीज का इजलास जारी है। इस जो रीजनल सदूर हैं इन इलाकों के वो भी यहाँ पर इस इजलास में शरीक है। बुनियादी तौर पर आइंदा सियासी लाहमल तय किया जा रहा है कि हुकूमत मुखालिफ एहतजाज जो है उसमें किस तरह शिद्दत लानी है। उन हुकूमत जो कि इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रही है उसके लिए क्या लाहमल इख्तियार करना है, और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो हुकूमती सतह पर इक़दाम हो रहे हैं उनके रद्द अमल में PTI की क्या स्ट्रेटजी होगी, अदलिया की आज़ादी के लिए PTI क्या कर सकती है, इन तमाम अमूर का जायज़ा लिया जाएगा। PDM की हुकूमत को आज चूँकि 1 साल भी मुकम्मल हो गया है तो आज इमरान खान जो है वो 4:15 बजे जो है वो कौम से अहम ख़िताब भी करेंगे, जिसमें वो एक वाइट पेपर जारी करेंगे जिसमें PDM हुकूमत की जो कारकर्दगी है मुख्तलिफ़ शोबों में उसको हदफ़ तनकीद बनाएंगे, जबकि PDM की जानिब से जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, सियासी कारकुनों के ख़िलाफ़ मुकदमात, गिरफ़्तारियों और दीगर जो अमूर हैं उनको भी हदफ़ तनकीद बनाया जाएगा। इसी तरह हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों को भी इस वाइट पेपर में उजागर किया जाएगा और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो इक़दाम कर रही है वाइट पेपर में उसके हवाले से भी बातचीत की गई जाएगी। इमरान खान 4:15 बजे जो है वो कौम से खिताब करते हुए वाइट पेपर जारी करेंगे। तो एक तरफ इस वक्त इमरान खान अपनी तंजीमी क़यादत के साथ सर जोड़े बैठे ज़मान पार्क में आइंदा का सियासी लाहमल तय कर रहे हैं और दूसरा वो आज वाइट पेपर जारी करेंगे। लियाकत अली सिलसिले में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक, साद रफ़ीक और मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तार इजलास में मौजूद हैं, जबकि इजलास में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के इख्तलाफी नोट पर भी मुशावरत की जा रही है। सदर मुमलिकत की जानिब से बिल वापस भिजवाए जाने पर भी गौर किया जा रहा है। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं ये जान लेते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन। ये बिल्कुल मौजूदा मुल्की सियासी और आलमी बहरान के पेश नज़र वज़ीर शहबाज शरीफ की सरबराही में 96H मॉडल टाउन में वफाकी काबीना का इजलास जो है वो जारी है। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास की शहबाज शरीफ लाहौर से वीडियो लिंक पर सदारत जो है वो कर रहे हैं। इजलास में वफाकी वज़रा अताउल्लाह तार ख्वाजा साद रफ़ीक और मलिक अहमद खान जो है समेत जो है दीगर शरीक हैं, जबकि बेशतर वफाकी काबीना के अरकान और अफसरान जो है वो वीडियो लिंक के जरिए वज़ीर आज़म हाउस से जो है इजलास में शरीक हैं। इजलास में फैसला किया जाएगा कि क्या पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फंड जारी किए जाएं या ना किए जाएं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 ऊपरी बेंच के फैसले और सदर मुमलिकत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के मामला पर भी बातचीत जो है वो जारी है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए हिकमत अमली पर भी जो गौर किया जा रहा है। इजलास में जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की अदालती इख्तिलाफी नोट पर भी बातचीत जो है वो जारी है। 14 मई के इंतखाबात के लिए अगर फंड बात कैसे करवाए इस पर अमल जो है तरतीब दिया जाएगा। इजलास में ठीक है, ज़ैन अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक MPs की मुलाकात हुई है। मुलाकात करने वालों में फारूक इमानुल्लाह दरिशक और अली इमानुल्लाह दरिशक शामिल हैं, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि नाअहल हुक्मरानों की गलतियों का खमियाजा कौम को उठाना पड़ रहा है। ज़ाती सियासत के लिए कौम को कुर्बान किया जा रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे लियाकत अली। जी बताइए। आज तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर परवेज़ इलाही से साबिक हुक्म पंजाब असम्बली फारूक इमानुल्लाह दरिशक
اور علی امان اللہ دریشی کی ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر چیف ویلے کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا جب فیصلہ آیا، چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے جو اس وقت فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا تھا تو ساری پی ڈی اے اس کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے اور ان کا نام چنتے تھے۔ اب چیف جسٹس نے آئین کے مطابق پنجاب میں الیکشن کا اعلان کیا ہے تو سب مخالفت پر اتر آئے ہیں۔ شہباز شریف نے چیف جسٹس کے خلاف بولنے کے لیے ذاتی ملازمین کو آگے لگا رکھا ہے۔ جو ان پر احسان کرتا ہے یہ اسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ چیف ویلے نے کہا کہ پنجاب کے الیکشن کی تاریخ دینے سے نون لیگ کے پیٹ میں تکلیف کیوں اٹھ رہی ہے؟ نااہل حکمرانوں کی غلطیوں کا خمیازہ پاکستانی قوم کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ سیاسی کردار جو ہے وہ اپنے سیاسی فائدہ کے لیے مرکوز کیا گیا ہے، ذاتی سیاست کے لیے قوم کو قربان کیا جا رہا ہے اور سیاست کو ذاتی دشمنی کا پی ڈی اے متانگ نہ دے۔ ملکی اسلامیت جو سالمیت ہے اس کو داؤ پر نہ لگایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صدر عارف الوی کا بل پر تصویب انکار ملکی آئین کے مطابق ہے، آئین سے انہوں نے انکار نہیں کیا بلکہ انہوں نے جو خامیاں تھی اس بل کی اس کے طرف نشاندہی کی ہے۔ جی ٹھیک ہے لیاقت علی، بہت شکریہ آپ کا۔ صحت کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس پھر سے سر اٹھانے لگا ہے۔ لاہور میں موذی وائرس کے 3 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کرونا مثبت کیسز کی شرح 9% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 1 ماہ کے دوران شہر میں کرونا سے 5 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، شہر میں اس وقت کرونا وائرس کے پھیلنے کے جو ممکنہ خدشات ہیں بدستور موجود ہے۔ شہر میں کرونا وائرس کے پھیلنے کی جو مثبت شرح ہے اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ اس وقت شہر کے اندر کرونا کے جو مثبت کیسز ہیں یہ 3 ہیں، جبکہ پنجاب میں اس وقت کرونا کے جو مثبت کیسز ہیں یہ 22 سامنے آ چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران پنجاب کے اندر 7 افراد جبکہ لاہور کے اندر 5 افراد کرونا وائرس کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ اس وقت پنجاب میں مجموعی طور پر 1.9% کے لحاظ سے جو مثبت کیسز ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں، جبکہ شہر کے اندر 9% جو مثبت کیسز ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ صحت کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو بیمار افراد ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو چاہیے کہ ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کی جانب سے عام افراد کے لیے بھی جو رش والے مقامات ہیں، پبلک مقامات ہیں، ہسپتال ہیں، یہاں پہ ماسک کے استعمال کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے تاکہ کرونا وائرس کی اس وقت جو پھیلنے کی جو شرح ہے اس کو روکا جا سکے۔ اس حوالے سے جو طبی ماہرین ہیں ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو وائرس ہے اے سمپٹومیٹک ہے، اس کی کوئی خاص علامات نہیں ہیں، لیکن جو بیمار افراد ہیں 1 سے 2 بیماریوں مبتلا ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں جن کی قوت مدافعت کمزور ہے، ان کے لیے یہ وائرس خطرناک ہے۔ لہذا شہریوں کو چاہیے کہ کرونا وائرس کے جو SOPs بنائے گئے ہیں اس پہ عمل درآمد کریں تاکہ کرونا وائرس کی آئندہ آنے والی جو خطرناک لہریں ہیں ان سے بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے محمد بلال، بہت شکریہ آپ کا۔ شہر میں ڈینگی کے پھیلاؤ کا امکان مزید بڑھ گیا ہے۔ سرویلنس ٹیموں کی سستا آٹا اسکیم پر ڈیوٹی کے باعث لاروا کے بڑھنے کے خدشات بھی سامنے آنے لگے ہیں، جبکہ شہر کے ہاٹ سپاٹ علاقے ڈینگی لاروے کی افزائش کی اماج گاہ بن چکے ہیں، جس کے بعد شہر میں ڈینگی مچھر کے مزید پھیلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ڈینگی لاروے کے بڑھنے کی وجہ سرویلنس کے عمل میں سست روی ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر لاہور ڈاکٹر زاہد منیر کہتے ہیں کہ شہر میں رواں سال ڈینگی لاروے کی برآمدگی پر 10 افراد کے خلاف FIR درج ہو چکی ہیں۔ ڈینگی لاروے کی افزائش کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈینگی مریض سامنے آنے کے باوجود لاروا کیوں نہیں مل سکا؟ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر کی افسران اور ڈینگی عملے کو حتمی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ کہتی ہیں کہ رواں سال ڈینگی کے 18 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ بارشوں اور مریض رپورٹ ہونے کے باوجود لاروے سے متعلق سب اچھا کی رپورٹ قابل قبول نہیں ہے۔ افسران کو روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی ٹیموں کا فیلڈ میں معائنہ کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈینگی مریض سامنے آنے کے باوجود لاروا کیوں نہیں مل رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر رافع حیدر کی افسران اور ڈینگی عملے کو حتمی وارننگ دے دی گئی ہے۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ رواں سال ڈینگی کے 18 مریض رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ بارشوں اور مریض رپورٹ ہونے کے باوجود لاروے سے متعلق سب اچھا کی رپورٹ قابل قبول نہیں ہے۔ افسران کو روزانہ کی بنیاد پر ڈینگی ٹیموں کا فیلڈ میں معائنہ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ویلکم بیک، اور اب بات کرتے ہیں ایسٹر کے حوالے سے۔ تو ایسٹر مسیحی برادری کا بڑا تہوار ہے۔ شہر کے گرجا گھروں میں عبادت اور دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ نگران صوبائی وزیر اوقاف اور مذہبی امور اظفر علی ناصر کہتے ہیں کہ مذہبی ہم آہنگی کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ زاہد علی کی رپورٹ دیکھیے۔
ईस्टर त्यौहार मसीही बरादरी खुशी से सरशार। शहर भर के गिरजा घरों में इबादत और दुआ तकरीब का एहतमाम। मसीही बरादरी के मर्दों, खवातीन और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। मजहबी गीत गाए और मुल्की सलामती के लिए दुआएं की गई। तकरीबात के दौरान ईस्टर त्यौहार की अहमियत पर रोशनी डाली गई। मसीही बरादरी ने कहा कि ईस्टर प्यार, मोहब्बत और अमन का पैगाम देता है। आज सबके लिए बहुत ही खास डे होता है। सारे मिलजुल के रहते हैं, सेलिब्रेशन चल रही होती हैं, डिनर्स हो रहे होते हैं और खुदा के घर में आते हैं, इबादत करते हैं। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमारा यही सारा कुछ चल रहा होता है। आज ईस्टर का त्यौहार मना रहे हैं, उसमें मजहबी रवादारी को फ़रोग़ देना चाहिए और सबसे पहले हमें वो दिन नहीं भूलना चाहिए जो इस काबिल नहीं कि ईस्टर को सेलिब्रेट कर सके, हमें उनको याद रखना चाहिए। निगरान वजीर औकाफ मजहबी अमूर पंजाब असफर अली नासिर ने कैथीड्रल चर्च मॉल रोड की दुआ तकरीब में शरीक हुए। इन्होंने कहा, मैं मजहबी हमांगी और रवादारी का पैगाम देने आया हूँ। हर किसी को मजहबी आज़ादी हासिल है। असर हाजिर में जो दहशत गर्दी और ये जो तशद्दुद है और जो इंतहा पसंदी है, इसके ख़ात्मे के लिए तमाम मज़ाहिब के जो लोग हैं उनको मुश्तरका तौर पे अपना किरदार अदा करना है ताकि प्यार, मोहब्बत, अखुवत, भाईचारा, हम आहंगी और इंसान दोस्ती जो है इसकी खूबसूरत जो फ़िज़ा है उसको फ़रोग़ दिया जा सके। गिरजा घरों में आने वाले अफराद को अमन के पैगाम के तौर पर फूल भी पेश किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद दी गई है। कहते हैं कि ईस्टर प्यार, मोहब्बत और बाहमी एहतराम के जज्बे का नाम है। मौजूदा वक्त में इत्तेहाद और मजहब के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हसन रज़ा। जी हसन। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बाकायदा ऐलान जारी किया गया है जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो इस मौके पर ईस्टर के हर तरह साथ हैं। उनकी तरफ से ये भी जो है वो वाज़ह किया गया है कि वो मौजूदा सूरत हाल में ईस्टर का त्यौहार हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्दाश्त की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में इत्तेहाद और मजहब के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत है। ईस्टर प्यार, मोहब्बत और बाहमी एहतराम के जज्बे का नाम है। दुनिया भर के मसीही बरादरी, खासतौर पर हमारे पाकिस्तानी मसीही भाइयों और बहनों को ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये भी कहा कि हुकूमत जो मुल्क में तमाम अक़लीतों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी जान माल की हिफाजत के लिए पुरज़्म है। आइए हम सब दुनिया को एक पुरअमन जंग बनाने का अहद करें जहाँ कम्युनिटीज़ हम आहंगी के साथ रह सकें और बेहतरीन मुस्तक़बिल की तरफ गामज़न हो। जी, डेप्टी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की मसीही बिरादरी को ईस्टर पर मुबारकबाद दी गई है। मोहसिन नकवी कहते हैं कि ईस्टर बेआसरा और मुस्तहिक अफराद के साथ वक्त गुजारने और खुशियाँ बांटने का नाम है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ईस्टर पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि हम मसीही बिरादरी की खुशियों में बराबर के शरीक हैं। मसीही बिरादरी अमन पसंद और हमारे लिए काबिल एहतराम है। मसीही बिरादरी ने न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान बल्कि अपना हिस्सा मुल्क की तरक्की में भी भरपूर डाला है। और निगरान वज़ीर-ए-आला ने मज़ीद कहा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों के लिए बिला तफ़रीक़ मसावात, आज़ादी और सलामती की तनकीन की है। हमें आज मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद के पैगाम को आम करना है। ईस्टर के मौके पर LWMC का शहर में ख़ुसूसी सफाई ऑपरेशन किया गया है। CEO LWMC बाबर साहबदीन का कहना है कि शहर में 300 से ज़ायद गिरजाघरों की सफाई मुकम्मल कर ली गई है। यूहन्नाबाद, जोसेफ कॉलोनी समेत 80 से ज़ायद मसीही कॉलोनीज़ में सफाई के ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये बताएंगे इमरान अकबर। जी इमरान। इमरान से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि ईस्टर के मौके पर LWMC का शहर में ख़ुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है, जबकि CEO LWMC बाबर साहबदीन का कहना है कि शहर में 300 से ज़ायद गिरजाघरों की सफाई मुकम्मल कर ली गई है। यूहन्नाबाद, जोसेफ कॉलोनी समेत 80 से ज़ायद मसीही कॉलोनीज़ में सफाई के ख़ुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं। आपको इस हवाले से बताते चलें कि ईस्टर के मौके पर LWMC का शहर में ख़ुसूसी सफाई ऑपरेशन जारी है, जबकि CEO LWMC बाबर साहबदीन का कहना है कि शहर में 300 से ज़ायद गिरजाघरों की सफाई मुकम्मल की जा चुकी है, जबकि यूहन्नाबाद, जोसेफ कॉलोनी समेत 80 से ज़ायद मसीही कॉलोनीज़ में सफाई के ख़ुसूसी इंतज़ामात भी किए गए हैं।
SP इकबाल टाउन उस्मान टीपू का गिरजा घरों का दौरा किया गया है। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया है। SP इकबाल टाउन ने मुख्तलिफ शाहराहों पर पेट्रोलिंग ड्यूटी को भी चेक किया है, जबकि SHOs को सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात नफरी को बार बार चेक करने की हिदायत कर दी गई है। गिरजा घरों तफरीही मकामात के गिर्द डॉल्फिन पिरू की टीमों को मौसर पेट्रोलिंग की हिदायत जारी कर दी गई है। मजीद क्या तफसीलात हैं, ये बताएंगे जैन अली। जी जैन। जी बिल्कुल, SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू को इकबाल टाउन डिवीजन का दौरा किया है। SP इकबाल टाउन का गिरजाघरों ने का भी दौरा किया है। SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू ने मुख्तलिफ शाहराहों पर पेट्रोलिंग ड्यूटी को भी चेक किया और ब्रीफ किया है। SDPOs और SHOs को सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात नफरी को बार बार चेक करने की जो हिदायत की है। PRU डॉल्फिन फोर्स का गश्त गिरजाघरों तफरीही मकामात आटा पॉइंट्स के गिर्द बढ़ाया गया है। गिरजाघरों पार्क तफरीही मकामात की सिक्योरिटी को भी अलर्ट किया गया है। हर इंसान को अपने मजहबी कायद के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी जो है वो हासिल है। इस पर मगर SP इकबाल टाउन का कहना है कि तमाम तर तकरीबात आटा पॉइंट तफरीही मकामात को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया जो है की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। ईस्टर की खुशियां मनाने के लिए मसीही बिरादरी चिड़ियाघर पहुंच गई है। मसीही बिरादरी के लिए चिड़ियाघर इंतजामिया ने दाखिला मुफ्त कर दिया है। बच्चों, बड़ों और ख़ातीन की बड़ी तादाद ने ईस्टर की खुशियां मनाने के लिए चिड़ियाघर का रुख कर लिया है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, ये बताएंगे मुबीन हैदर। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से है कि ईस्टर का मौका और क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है हमारी बहुत ही कसीर तादाद में जो है लाहौर चिड़ियाघर और मुख्तलिफ तफरीह गाँव में मौजूद है। इस वक्त लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद है और लाहौर चिड़ियाघर के इंतजामिया की तरफ से जो है फ्री एंट्री का भी ऐलान किया गया है क्रिश्चियन बरादरी के लिए। और यहाँ पर एक फैमिली क्रिश्चियन हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ आए हुए हैं, फैमिली इंजॉय कर रही है। कैसे तासुरात है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप ईस्टर के मौके मुल्क पाकिस्तान के जो वज़रा हैं शहबाज शरीफ के लिए, उनके लिए मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत मौका दिया ताकि जो क्रिश्चियन हैं उनके लिए फ्री टिकट का इंतज़ाम किया है, ताकि लोग और बच्चे आके यहाँ पर जो है सैर तफरी कर सकें, मुख्तलिफ जो है वो देख सकें। और सबसे बड़ा शिकवा और शिकायत ये है कि यहाँ पर जी तो खाने पीने का जो स्टॉल है वो बंद किया हुआ है हमारे लिए। इनसे गुजारिश है कि उसको भी खोला जाए ताकि लोग वहाँ से खा पी सकें और इंटरटेनमेंट कर सकें। कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप ईस्टर का मौका, आप फैमिली के साथ यहाँ पे आई हुई हैं, क्या तासुरात हैं आप? मैं ईस्टर के मौका पर बहुत सी खुशियाँ बखेर रही हैं यहाँ पर हमारे लोग, और खुदावंद का शुक्र है छोटे बच्चों बड़ों को बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने ये इंतज़ामात किए हुए हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँच सके हैं। जैसे कि आपने सुना कि नेक ख्वाहिशात के इज़हार करते हुए लोग दिखाई देते हैं, उनका कहना है कि बहुत ही आला इक़दाम किया है चिड़ियाघर इंतजामिया ने, जो कि है लोगों के लिए फ्री टिकट्स का इंतज़ाम किया और तफरी का भी इंतज़ाम की उम्मीद करते हैं इसी तरह से जो है लोगों को फैसिलिटेट किया जाता रहेगा और जो ईस्टर की खुशियाँ हैं लोग पूरे ज़ोरों शोर से मनाएंगे। जी ठीक है, मुबीन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सिटी डिवीजन पुलिस का वन व्हीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शाहदरा शफीकाबाद और रावी रोड पुलिस ने 34 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मंजिले टोलियों की शक्ल में वन व्हीलिंग करते थे, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद क्या अपडेट्स हैं, ये बताएंगे जैन अली। जी बताइए। जैन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस पुलिस की कार्रवाई के हवाले से। सिटी डिवीजन पुलिस का वन व्हीलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शाहदरा शफीकाबाद और रावी रोड पुलिस ने 34 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। मनचले टोलियों की शक्ल में वन व्हीलिंग करते थे, जबकि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया गया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, ये बताएंगे जैन अली। जी जैन, बताइएगा इस क्रैकडाउन के हवाले से। जी बिल्कुल, सिटी डिवीजन पुलिस ने वन व्हीलर के खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो जारी है। शाहदरा शफीकाबाद और रावी रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 34 वन व्हीलर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान सहरी से पहले खाली सड़कों पर खतरनाक व्हीलिंग और हुल्लड़बाजी करते थे। मंचले टोलियों की शक्ल में आज़ादी फ्लाईओवर, ग्रेटिक बाल पार्क, बंद रोड, शाहदरा समेत लाहौर की खुली सड़कों पर खतरनाक करते दिखाई देते थे। शफीकाबाद पुलिस ने 13 जबकि रावी रोड पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 16 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। शाहदरा पुलिस ने कार्रवाई करते 5 वन व्हीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। मुल्जिमान के जरिए इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी पुलिस तहवील में ले लिया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का भी आगाज कर दिया गया है। जी तहकीकात का आगाज कर दिया गया है, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। CIA मॉडल टाउन पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। 4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान से 2 करोड़ 52 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद हुआ है। गिरफ्तार मुल्जिमान में इरफान, मोहसिन, सलीम, इरशाद शामिल हैं। आपको बताएं कि CIA मॉडल टाउन पुलिस की यह कार्रवाई सामने आई है।
4 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मुलजिमान से 2 करोड़ 52 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद हुआ है। मजीद तफसीलात बताएंगे मुदस्सिर हुसैन। जी बताइए। जी बिल्कुल, सीए माल्टन पुलिस ने ये कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजमान में इरफान, मोहसन, सलीम और इरशाद शामिल है। गिरफ्तार मुलजमान से 2 करोड़ 52 लाख रुपए मालिक का जो माल मसरूका है वो बरामद कर लिया गया है। इस वाले से डीएसपी सीआईए का कहना है कि मुलजमान साबिक सरकार याफ्ता हैं। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने मुतअद्दिद वारदातों का इतराफ भी कर लिया है। मुलजमान ने शुक्रवार के करीब मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स और इसके अलावा लोडर से बड़ा ट्रक जो है वो लूटा था। मुलजमान मुख्तलिफ जगहों पर नाका लगाकर लोडर ट्रक को रोककर गन पॉइंट पर शहरों का माल लूटते थे। इस वजह से डीएसपी का मजीद कहना है कि मुलजमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सांदा पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। खतरनाक करतब दिखाने वाले 30 वन व्हीलर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि मुलजमान सोशल मीडिया पर वन व्हीलिंग की वीडियोस अपलोड करते थे। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे जैन अली। जी जैन। जैन से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि सांदा पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। खतरनाक करतब दिखाने वाले 30 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान सोशल मीडिया पर वन व्हीलिंग की वीडियोस अपलोड करते थे। आपको बताते चलें इस कार्रवाई के हवाले से, जो कि सांदा पुलिस की जानिब से की गई है। तो खबर ये भी है कि आईजी पंजाब का ट्रैफिक पुलिस के गाजियों के लिए एक और ऐसा इकदाम सामने आया है। दौरान ड्यूटी हादसात में शदीद जख्मी होने वाले वार्डन्स के लिए गाजी का खिताब, जबकि गाजी वार्डन्स को क्लास 1 सर्टिफिकेट 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान सामने आया है, जबकि गाजी वार्डन्स को उनकी पसंद की पोस्टिंग, एजाज़ी बैज और दीगर मराद से भी नवाजा जाएगा। इस हवाले से आपको बताते चलें कि आईजी पंजाब का ट्रैफिक पुलिस के गाजियों के लिए एक और ऐसा इकदाम सामने आया है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये बताएंगे जैन अली। जी बताइए। जी बिल्कुल, आईजी पंजाब का ट्रैफिक पुलिस के गाजियों के लिए एक और एक्शन इकदाम जो है वो सामने आया है। आईजी पंजाब का दौरान ड्यूटी और ट्रैफिक हादसात में जख्मी वार्डन्स के लिए एक और ऐसा इकदाम, दौरान ड्यूटी हादसात में शदीद जख्मी वार्डन्स के लिए गाजी का खिताब जो है वो दिया जाएगा। गाजी वार्डन्स को क्लास 1 सर्टिफिकेट 1 लाख रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया गया है। गाजी वार्डन्स को इनकी पसंद की पोस्टिंग, एजाज़ी बैच और दीगर मराहत भी जो है वो दी जाएंगी। सिटी ऑफ लाहौर ने ऐसे तमाम वार्डन से दरख्वास्तें जो है वो तलब कर ली हैं। सिटी ऑफ लाहौर की इंचार्ज वेलफेयर को 2 दिन में रिकॉर्ड मुकम्मल करने की जो हदायत भी जारी कर दी गई हैं। दौरान ड्यूटी किसी भी हादसे के शिकार वार्डन्स की वेलफेयर को यकीनी बनाया जाएगा। दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने वालों के लिए आसानियां पैदा जो है वो की जाएंगी। इस मौके पर सिटी ऑफ लाहौर का कहना है कि स्पा के वेलफेयर को यकीनी बनाने से बेहतरीन नतीजे जो है हासिल किए जा सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे आप। ईद उल फितर करीब आते ही बाज़ारों की रौनकें बढ़ जाती हैं। लाहौरियों ने ईद की शॉपिंग के लिए अनारकली बाज़ार का रुख कर लिया है। छुट्टी के रोज़ भी अनारकली बाज़ार में शहरियों का खासा रश दिखाई दिया है। शहरी कपड़ों, जूतों और चूड़ियों की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दिए हैं। मज़ीद तफसीलात क्या हैं ये जान लेते हैं सामिया सईद से, जो कि इस वक्त मौजूद हैं अनारकली बाज़ार में। जी सामिया। हाँ जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना होता है जिसमें लोग इबादत के साथ साथ जो है शॉपिंग सेंटर्स का भी रुख करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अनारकली में और यहाँ शहरियों की एक बड़ी तादाद आई हुई है जो ईद की शॉपिंग कर रही है। ईद जो है वो बस आखिरी मरहलों में है, अपने ईद आने ही वाली है, तो लोग जो हैं यहाँ पे शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इस कदर रश है कि तिल धरने की भी जगह नहीं है। शहरी जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं। कपड़ों के दुकानों में देख लो तो इतना रश है, जूतों की दुकानों में भी रश लगा हुआ है। महंगाई है लेकिन इसके बावजूद भी जो शहरी हैं वो ईद की शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं और एक मर्द मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी सर बताइएगा क्या खरीदने आए हैं? बच्चों की शॉपिंग करने आए हैं जी यहाँ पर। तो अभी देख रहे हैं, एक तो महंगाई बहुत है, तो साथ साथ चीज़ें देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, जैसे कोई चीज़ बेहतर लगेगी फिर ले लेंगे। फिर ये बताएं सर, महंगाई तो हो गई है, कितना फ़र्क आया पिछले साल के निस्बत इस साल में? डबल कह दें जी, बल्कि डबल से भी ज़्यादा कह सकते हैं आप। डबल से भी ज़्यादा है, क्योंकि जो चीज़ आपको मिल जाती थी 1000 रुपये में, अब वो कम से कम आपको 2500 की मिल रही है जी। ये है फ़र्क यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद शहरियों का यही कहना है कि जो चीज़ पहले आपको 1000 रुपये में मिलती थी अब उसकी जो कीमत है वो दुगनी हो गई है। 2500 रुपये में अब वो चीज़ मिलती है। महंगाई जो है इस कदर बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ बाजार आए हैं क्योंकि ईद जो होती है वो बच्चों की होती है, उनकी शॉपिंग करने के लिए। ठीक है, सामने अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।